सर माइक ऑन कर लें। जी ठीक है सर, आवाज आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है। अभी स्टूडेंट आ गए हैं पूरे या रुक जा, मैं जस्ट म्यूट करने दो, फिर आ जाएगी। रुक जा। हाँ जी अब अपनी ऑन करो। मेरी बैक साइड पे बहुत आवाज है। साहब बोलने शुरू नहीं किया, म्यूट कर दो, खत्म हो जाएगा। अच्छा मेरा ख्याल टाइम हो गया तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। In the last session, we studied and learned about the process costing, and we also learned the how to construct the cost of production report. So today we are going to do some exercise, but before doing that exercise, let's have a recap. So the cost of production report starts from the name of the department and then followed by the name of the statement and then in the time period. Then the first section is quantity schedule. In the quantity schedule, we count the units, physical units, and reconcile. So if it is a first department, then units is mentioned, that is units started in process. So then the units transfer to next department, and then units still in process. And if there is, if the units are lost, then the lost units are mentioned. And then if we add all these physical quantities, then we can reconcile the total unit which was started in the process. So in the first session, we are not considering the opening inventory. We will consider the opening inventory later on, because that considering the opening inventory, then we will have adopt the inventory method, that is average costing or FIFO costing. So to understand, first we will not take the opening inventory. So without considering the opening inventory, we'll try to understand the cost of production report. So the next section, section is the cost charged to the department. In this section, we create two columns, total cost column and unit cost column. So if it is a first department, then we can see that there is no cost fee received from previous department. So all the cost charged is the cost added in the department. So we will record all the cost added in the department.
one by one for each cost element. So the first cost element, you know, that is the material. So for material, we calculate the equivalent units. 45,000 were transferred to, completed and transferred to next department, and 4,000 were 4,000 were in process closing, and 1,000 were lost. So we are not considering 1,000 lost units. So total units are 49,000. In 40, since the material were, we can see in the quantity schedule that the in process inventory, all the material were, they were complete toward the material because the material were added in the start of the process. So when you add the material in the start of the process, so the work in process inventory have all the material. So, so material wise, the work in process inventory is complete. So we take the unit as whole unit. So 45,000 plus 4,000 comes to be 49,000. And the material cost of material is 24,500. So if we divide the 24,500 by 49,000, we get 0.50 per unit cost. Similarly, the labor is the total cost of labor added is 29,140, and equivalent, we calculate the equivalent unit. 45,000 were complete, so we'll take the 45 as complete unit. 4,000 unit were half complete toward factory overhead and labor toward the conversion. So we will divide the 4,000 because they were half complete toward the conversion cost. So we we will divide it by 2 and we'll get 2,000. 2,000 plus 45,000 comes to be 47,000. So we divide 29,140 by 47,000, we get the unit cost 0.62. And then the last cost element is factory overhead. The similar equivalent quantities will be because the conversion cost were half completed in the work in process. So the equivalent unit is same as for the labor. So it is same for the factory as it was for the labor. So 45,000 plus 2,000, we get 47,000. And this is the amount, this is the cost for the factory overhead. So if we divide 28,200 by 47,000, we get 0.62. So adding all these costs, the unit cost and the total cost, we get the total cost 81,840, and the unit cost is 1.72. So now the cost accounted for as the next section we will reconcile the as cost accounted for all the activity, how much cost has been transferred to next department and how much cost is left in the work in process inventory. So in this section, first of all, we'll calculate the cost of unit transfer to the next department. Transfer to next department, 45,000. You can see from the quantity schedule that the unit transfer to next department, 45,000. So, and we get the unit cost from the previous section is 1.72. So 45,000 into 1.72, we get 77,400. And the next step is to calculate the cost of the work in process in ending inventory. So work in process ending inventory has the material cost of 4,000. So we will take the 4,000 as whole unit for material because the work in process is complete toward the material because the material were put in process in the start of the process. So the material wise, the work in process inventory is complete. So the whole unit will be taken. 4,000 into the unit cost, which was 0.50, we get 2,000. And for labor, it is 4,000. So the labor was half complete. So we divide the 4,000 by 2. So 2,000 multiplied by unit cost 0.62, we get 1,240. Then the last element is factory overhead. 4,000, again, factory overhead is half complete. The work in process is half complete toward the factory overhead. So we take the half unit of factory overhead. So 4,000 divided by 2 into 0.60 is the rate. We get 4,440.
if we add up all these costs, we get 81,840. So this amount is reconciled with the above previous section. So now we'll do some exercises to learn the construction of the cost of production report. So let me take you to the this is exercise number 1. A company company's department 1 cost for June were cost added. Since it is the first department, so care should be taken there whether it is a first department or subsequent department. So in this exercise, it is mentioned that it is the first department number 1. So no cost has been received from there. There is no previous department yet. Previous department doesn't exist. So all the cost is charged to the department consists of cost added in the department. So the cost added in the department, material 78,750, labor 56,875, and factory over 45,500. The quantity schedule shows 20,000 units were started in the production during the month and 50,000 were transferred to Department 2, whereas 5,000 units were still in process at the end of June and were 50% complete as to material cost and 25% complete to conversion cost. So we can see that there is no lost unit. 20,000 were put into process and 15,000 units were transferred to next department and 5,000 were left in the work in process closing. And the work in process closing consists of 50% of material and 25% of conversion. So it means that the material was not put in the start of the process. It seems that the materials added uniformly during the process. That's why in some processes the material is added at the start, but in some process the material is added gradually during the process. So that's why the work in process is not complete toward the material. Only 50% is completed toward the material and 25% completed toward the conversion cost. So let's do this exercise on the Excel. एक्सेल में इसको कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी है इसका. कंपनी डिपार्टमेंट 1, कंपनी का नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसको डिपार्टमेंट 1 कर लेते हैं. कंपनी डिपार्टमेंट 1, ठीक है. डिपार्टमेंट का नाम लिखना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट का है. तो ये है फॉर द मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉलोड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट for the month ended for the month of June. Okay. The next step is quantity schedule. पहला जो इसका सेक्शन है वो क्वांटिटी स्केड्यूल होगा. क्वांटिटी स्केड्यूल में सबसे पहले अगर आप देखें तो यूनिट स्टार्टेड जो है इसमें 20,000 है. यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 20,000 और यूनिट ट्रांसफर. अब यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं प्रोसेस में 20,000, तो अब हमने जो कंप्लीट किए हैं,
कंप्लीट जो डिपार्टमेंट 1 में जो प्रोसेस हो रहा है वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके हमने डिपार्टमेंट 2 भेजे हैं। वो कितने यूनिट्स हैं? वो हैं यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट कर देते हैं। वो हैं हमारे पास वो हैं 15,000 और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, स्टिल इन प्रोसेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी है वो है 5,000। तो ये हमारी यूनिट्स जो है, ये अगर हम इसको करें, ऐड करें तो हमारा काउंट ये हमारे मैच कर जाते हैं 20,000। सो 20,000 जो यूनिट्स थे दे वर स्टार्टेड इन द प्रोसेस, जिसमें से 15,000 हमने ट्रांसफ़र आउट किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को और 5,000 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। और 5,000 जो हैं दे वर 50% कंप्लीट टुवर्ड मटेरियल और 25% कंप्लीट टुवर्ड द कन्वर्जन। तो हम इसके साथ लिख भी देते हैं कि 50% मटेरियल और 25% जो है वो कन्वर्जन है। तो ये हमारा काउंट जो है वो रिकनसाइल कर गया 15,000 और 5,000 प्लस 5,000 टू 20,000। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा है वो है क्या नाम है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, इसमें इसके दो स्टेप होते हैं, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो चूंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट से, दिस इज फर्स्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, सो सिंस दिस इज फर्स्ट पार्ट, सो यहाँ पे हम दो जो हैं क्रिएट करेंगे कॉलम, एक टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट, और दूसरा है यूनिट कॉस्ट का। तो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट जो है वो ज़ीरो है, चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट डजेंट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉस्ट एडेड। अब चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो जो भी कॉस्ट चार्ज हुई है वो ऐड हुई है सी डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट ऐड हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट 1। तो इसमें सबसे पहले मटेरियल आता है। मटेरियल जो है, अब हम मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि मटेरियल जो है 15,000 जो है वो तो कंप्लीट करके वी हैव ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। सो 15,000 यूनिट्स जो दे वर कंप्लीट टूवर्ड द मटेरियल, चूँकि मटेरियल कंप्लीट था इसलिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमने उसको भेज दिया। 15,000 तो वो हो गए, प्लस जो अब रह गए हैं वर्क इन प्रोसेस में, तो वो 50% कंप्लीट हैं। ठीक हो गया। अगर आप देखें तो जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है उसमें मटेरियल 50% है। तो यूनिट जो अभी रह गए हमारे पास वो हैं 5,000 और इंटू 50%। तो ये या हाफ कर लें इसके 50%, 50%। तो ये बन जाते हैं हमारे पास इसका 5,000 का हाफ 2,500 और 15,000, तो ये 17,500 के हमारे आ जाएंगे, 17,500।
टोटल इक्विवेलेंट यूनिट बन जाएंगे। अब इसके जो कॉस्ट है, ये मटेरियल कॉस्ट है 78,750, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आई है। सो टू फाइंड आउट द यूनिट कॉस्ट, व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू is that we will divide the 78,750 by 17,500. So this amount divided by 17,500. So we get the unit cost of 4.50. Similarly, we calculate the cost of material labor added in the डिपार्टमेंट वन। तो लेबर जो है, लेबर इसके इक्विवेलेंट यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे 15,000। 15,000 is the complete units. The 15,000 units were transferred to the next department, and work in process inventory जो है वो है 5,000, but they were only 25% complete toward, अगर हम ऊपर देखें तो they were 25% complete लेबर वाइज। सो इसको हम 25% लेंगे, 25%। तो हमारे पास जो टोटल फिगर आएगी इक्विवेलेंट यूनिट की, वो आएगी ये 1250 आएगी। इसकी 25% जो 5,000 का 1250 होता है, तो ये 15,000 प्लस 1250, तो ये हो जाएगा 16,250। 16,250 ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो आ रही है, लेबर की जो टोटल कॉस्ट है 56,875। 56,875। तो इसके अब इसको हम यूनिट कॉस्ट लेने के लिए, मालूम करने के लिए, व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस 56,875 बाय 16,250। सो this divided by 16,250. So we get the unit cost of 3.50. Similarly, we can also calculate the cost of the FOH. And for FOH, the same equivalent unit is applicable because conversion are 25% complete in the work in process. So and FOH cost is total cost added is 45,500. 45,500. So now we divide this 45,500 by 16,250. So we get 2.80 per unit cost. Now let's add up all these total cost. We get so if we take, so total cost is, so total cost comes out to be 181,125, and the total unit cost comes out to be 10.80. Now the next step is to cost charged to the department, cost accounted for, cost accounted for as follows. So what we are going to do, we are going to calculate the cost of the units transferred to next department. Cost of units transferred to next department.
So if you remember, 15,000 units were transferred. So what we are going to do, we will multiply 15,000 with 10.80. So 10.80. So we will get 15,000 into 10 point this. So we get 162,000. 162,000, and now we will calculate the cost of the work in process inventory. Work in process closing. So work in process closing, the work in process closing consists of material, so we will calculate the material is half completed. So the units in the work in process are 5,000 plus half completed. So this comes out 2,500. So 2,500 units are equivalent in the work in process inventory, because the work in process is 50% complete toward the material. So material unit cost was, as you can see, 2,500, and unit cost was 4.50. So what we do, we are going to multiply by 4.5. So we get the material cost of 11,250. Similarly, we will calculate the cost for labor. And for labor, we know that it was 25% complete toward the, so total units will be 1250. So now we multiply the 1250 with the unit cost 3.50. So we get 4,375. Similarly, we will calculate the cost for the FOH. And FOH same. So we are going to multiply 1250 with the unit cost of 280. 2.80. So we get now if we add up all these costs, we get now this is the cost. 19,125 is the cost of the closing inventory. This closing inventory, material plus labor plus FOH. So the total cost comes out to be 19,125, and this is the cost which was transferred to the next department. If we add both of them, we get the same amount. As you can see that this amount is reconciled with this amount. So
Let's me highlight it. So our calculation is accurate. हमारी calculation जो है बिल्कुल accurate है. तो हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की थी और पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी यहाँ पे, और वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि हमने इसको रिकनसाइल कर दिया लास्ट सेक्शन में. उसमें 162,000 कॉस्ट वाज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, and the closing inventory cost comes out to be 19,125. So if we add both of these costs, we get 181,125. So now this cost has been reconciled with the cost charge to the department. So this is how we construct the cost of production report. Before going toward the next exercise, if you have any question, you can ask. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं. जी आयशा. जी किसी ने हैंड रेज किया. जी आप क्वेश्चन पूछें आपका. जी शफीक साहब, मेरा ख्याल उनका जो शफीक साहब, आप अपना ये इनके जो हैं माइक खोल दें काइंडली. हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बिल्कुल आ रही है. जी बोले सर, इन सब के माइक खुले में, ये खुद अनम्यूट करें. अच्छा जी. जी बच्चों आप अपने माइक खोल सकते हैं आप. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी 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 पूछिए. जी हेलो. हाँ किसी का क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज. कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए थे तो वो बच्चे अपने माइक खोल के तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर, जी जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोअर्स में जो मटेरियल वाला है वो स्टेप समझा दें. मटेरियल से ये जो सेकंड स्टेप है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, सर, इससे नीचे इससे नीचे नीचे वाला लास्ट, ये वाला लास्ट में मटेरियल, लास्ट में मटेरियल वाला. जी सर. अच्छा मटेरियल, ये वर्क इन प्रोसेस का है. देखिए जो हमने कॉस्ट ट्रांसफर की है उसको क्या नाम है नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, तो उसमें ये उसकी कॉस्ट बनती है. एक तो हमने एक कॉस्ट ट्रांसफर की है, तो कॉस्ट ट्रांसफर हमने ये जो हमने यूनिट कॉस्ट निकाला है अपना तीनों कॉस्ट एलिमेंट को ऐड करके ये हमारा यूनिट कॉस्ट निकला है. ठीक है. तो इस यूनिट कॉस्ट को हमने मल्टीप्लाई किया. 15,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट. अगर आप क्वांटिटी स्केड्यूल देखें तो उसमें हमने 15,000 जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को. तो अगर इफ़ यू मल्टीप्लाई विद दिस यूनिट कॉस्ट, इस यूनिट कॉस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करें 15,000 को तो वी गेट 162,000. अच्छा अब ये कॉस्ट तो ट्रांसफ़र हो गई. अब बाकी जो वर्क इन प्रोसेस रहती है उसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है. जो क्लोजिंग है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्लोजिंग. ठीक है. तो क्लोजिंग में हमने क्या किया कि क्लोजिंग में मटेरियल की कितनी कॉस्ट है. मटेरियल की 5,000 हमारे पास यूनिट रह गए और वो 50% कंप्लीट है टुवर्ड दी मटेरियल. यानी कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें स्टार्ट में मटेरियल, स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस मटेरियल डाल दिया जाता है. तो उसमें ये होगा कि जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री उसमें 100% मटेरियल होगा. कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि यूनिफॉर्मली जो है विद दी जो प्रोसेस के दौरान मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है. तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आखिर में आपके पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग बचती है तो उसमें 100% मटेरियल हो. उसमें 50% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, डिपेंड कि कितना मटेरियल ऐड हुआ है. लेकिन अगर आप स्टार्ट में मटेरियल डालेंगे
तो उसमें 100% मटेरियल फिर वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में 100% मटेरियल होगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसमें 50% मटेरियल है। तो चूंकि यूनिट 5000 है और उसमें पूरा मटेरियल अभी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ 50%, तो हम उसको कंप्लीट यूनिट 50% ही कंप्लीट यूनिट लेंगे, वो आ जाते हैं 2500। ठीक है, तो चूंकि 5000 यूनिट है और अगर हम इफ़ वी टेक देम एज ए कंप्लीट यूनिट, तो उसमें चूंकि 50% मटेरियल है तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2500। तो अब 2500 यूनिट्स को अगर इफ यू मल्टीप्लाई विद द यूनिट कॉस्ट, यहाँ अपनी यूनिट कॉस्ट ऊपर निकाली हुई है, ठीक है, ये वाली, तो इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2500 को, तो वी विल गेट 11,250। इसी सिमिलरली लेबर को, हमारे पास जो लेबर वर्क इन प्रोसेस में है वो 25% हर यूनिट जो है वो आर कंप्लीटेड टू 25 पर टूवर्ड द कन्वर्जन कॉस्ट। तो जो 25% अगर 5000 यूनिट, तो उनका 25% लेंगे तो ये हमारे पास 1250 जो है ये इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे। सो मल्टीप्लाइंग 1250 विद दिस यूनिट कॉस्ट, तो वी विल गेट 4350, ठीक है, 375, 4375 हमें। सिमिलरली हम FOH का भी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं वर्क इन, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो हमारे पास आ रही है वो है जनाब 19,000। जब हम इसको तीनों एलिमेंट को ऐड अप करेंगे, मटेरियल, लेबर एंड FOH, वी गेट 19,125। तो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है, और ये जो ऊपर वाली कॉस्ट है ये हमारे पास, ये वो कॉस्ट है जो हमने ट्रांसफ़र कर दी है नेक्स्ट डिपार्टमेंट 2 को हमने ट्रांसफ़र की। तो इन ये कॉस्ट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट वी गेट 181,000, which is exactly equal to the cost calculated in the previous section। प्रीवियस सेक्शन में जो हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी तो उसके एग्जैक्टली मैच कर जाती है। तो इट मींस के हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। एनी क्वेश्चन? इन्हें किस तरह किताबें विच करवाना है, एक्सरा लवाना है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट? किसी और का, क्योंकि काफ़ी हैंड रेज हुए थे, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। चले ठीक है, इफ़ नो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगर आप देखें तो इसमें, अगर आपको नज़र आ रहा है, मेरा ख्याल है इट्स क्वाइट विजिबल। अब इसमें जो है, हम चूँकि पहले डिपार्टमेंट में जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट 1 की हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई है। तो अब हम डिपार्टमेंट 2 की बना रहे हैं कि सेकंड डिपार्टमेंट की उसकी कैसे बनेगी, ठीक है। कंपनी डिपार्टमेंट 2 कॉस्ट फॉर द जून वर कॉस्ट फ्रॉम रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, चूँकि ये दिस इज़ द सेकंड डिपार्टमेंट। अब ये इसमें चूँकि ये सेकंड डिपार्टमेंट है तो इसमें कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट से भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। वो है 16,000 ड्यूरिंग द पीरियड। जो कॉस्ट आई है पिछले डिपार्टमेंट 1 से, वो है 16,320। अब ये तो पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है हमें। अब इस डिपार्टमेंट में भी कुछ कॉस्ट एडिशन हुई है। इस कॉस्ट में, इस डिपार्टमेंट में भी मटेरियल ऐड हुआ है। तो मटेरियल ऐड हुआ है 43,415 और लेबर से 56,000 और फैक्ट्री ओवर है। The quantity schedule shows 12,000 units were received during the month from Department 1 and 7,000 were transferred to the finished good, whereas 5,000 units were still in process at the end of the June and were 50% complete toward the material cost and 25% were to the conversion cost। तो ये चूँकि इसमें अब देखें कि 12,000 पिछले डिपार्टमेंट से आए थे और इस डिपार्टमेंट में यूनिट्स ऐड नहीं हो रहे, बल्कि ये जो मटेरियल ऐड हो रहा है इसकी वजह से मटेरियल ज़्यादा, यूनिट्स ज़्यादा नहीं हो रहे, ठीक है। तो यूनिट्स वही रहेंगे जो हमें पिछले डिपार्टमेंट से। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं कि जब आप मटेरियल ऐड करते हैं तो उसमें जब मटेरियल ऐड करते हैं तो वो उसकी यूनिट ज़्यादा बढ़ जाते हैं,
ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी है, वो भी हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे बाज़ औक़ात जैसे पैकिंग डिपार्टमेंट है, अब पैकिंग मटेरियल उसमें डाला जाए तो उसकी वजह से यूनिट तो बढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस कि जब आप मटेरियल कोई और मटेरियल ऐड करेंगे तो उससे यूनिट्स बढ़ जाते हैं। मसलन कोई पेंट है तो पहले आपने उसमें सॉल्वेंट या रेजन डाला है, फिर उसमें आपने सॉल्वेंट डाल दे, सॉल्वेंट डालेंगे तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरह कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि मटेरियल सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट में जब आप मटेरियल ऐड करते हैं तो यूनिट्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट्स तो बड़े नहीं हैं, यूनिट्स उतने ही हैं, मटेरियल ऐड हुआ है और प्रॉबली दिस इज़ मेरा ख्याल है पैकिंग मटेरियल होगा शायद, जो इस तरह नज़र आ रहा है। तो 12,000 यूनिट्स वर रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, 7,000 वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स जैसे, whereas 5,000 were still in process at the end of the June and were 50% completed toward the material and 25% complete toward the conversion cost. तो इसमें जो है कोई यूनिट लॉस नहीं हुआ, तो हम फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो डिपार्टमेंट कंपनी का नाम तो खैर नज़र नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ डिपार्टमेंट 2 लिख देते हैं, डिपार्टमेंट 2, और उसके बाद फॉलो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन CPR रिपोर्ट, और फॉलोड बाय द मंथ। अब मंथ है ये जून है, फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ जून। तो इसमें वो नहीं दिया हुआ, साल नहीं दिया हुआ, तो हम इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, पहले जो स्टेप है दैट इज़ अ क्वांटिटी स्केड्यूल, ठीक है, क्वांटिटी स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी है। अब इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटी का वो हिसाब किताब रखेंगे। तो यूनिट रिसीव, तो पहले जो है यूनिट रिसीव्ड फ्रॉम वन, ठीक है, रिसीव और यूनिट्स जो हैं ट्रांसफर्ड आउट, ये पिछले डिपार्टमेंट से आए यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट 2 जो भी है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट 2 तो ये खुद ही है। नेक्स्ट जो फिनिश गुड्स स्टोर रूम जो है वहाँ पे टू फिनिश गुड्स, वो है 7,000। उसके बाद अब चूंकि यूनिट लॉस नहीं हुए तो बाकी यूनिट जो है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में पड़े हुए, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, उसमें हमारे पास 5,000 यूनिट पड़े हैं। तो ये हमारा काउंट कंप्लीट हो गया। अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास वही 12,000 आने चाहिए। तो ये 12,000 हमारे पास रिकनसाइल हो गए, ठीक है। 12,000 यूनिट्स हमें डिपार्टमेंट 1 से, चूँकि ये दिस इज़ डिपार्टमेंट 2, अगर आपको नज़र आ रहा है डिपार्टमेंट 2, और हमें जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव हुए हैं वो 12,000 हैं, जिसमें से 7,000 हमने कंप्लीट करके फिनिश गुड को भेज दिए, 7,000 यूनिट, और 5,000 जो हमारे पास अभी रह गए। अब 5,000 यूनिट्स जो हैं इसमें जो मटेरियल 50% कंप्लीट है, मटेरियल 50% है, और कन्वर्जन जो है वो 25% है। कन्वर्जन जो है वो 25% है। कन्वर्जन मीन लेबर एंड FOH, ठीक हो गया।
तो ये कन्वर्जन मटेरियल 50% है और कन्वर्जन जो है हमारे पास वो है तकरीबन हमारे पास है 25% कंप्लीट है। ठीक हो गया, तो ये हमारा काउंट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट टू। ठीक हो गया, कॉस्ट चार्ज। अब इसमें फर्स्ट जो चीज़ है, पहली चीज़ जो ये है कि कॉस्ट हमें पिछले चूँकि दिस इज़ द डिपार्टमेंट टू, सो वी हैव रिसीव्ड कॉस्ट फ्रॉम द प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट जो पिछले डिपार्टमेंट से आ रही है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम दो कॉलम बनाएंगे, एक तो टोटल कॉस्ट का है कॉस्ट और दूसरा है यूनिट कॉस्ट का। ठीक हो गया, ये दो कॉलम हमारे बन गए हैं। तो इसमें अब जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 16,320 है, 16,320। ठीक हो गया, और इसकी यूनिट कॉस्ट किस तरह निकालेंगे हम? 16,320 हमें टोटल 12,000 जो है वो रिसीव हुए हैं पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट, तो कॉस्ट आई है 16,320। तो यूनिट कॉस्ट के लिए व्हाट वी डू, 16,320 डिवाइडेड बाय 12,000, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट इसकी आ गई 1.36 की। ठीक हो गया, अब दूसरा स्टेप जो है टू कैलकुलेट द कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में कौन सी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट ऐड हुई है? नाउ लेट्स कैलकुलेट दैट कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट 2। ठीक हो गया, अब जो इस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट ऐड हुई है उसमें सबसे पहले तो मटेरियल है। अब मटेरियल का जो साथ साथ हम इक्विवेलेंट यूनिट भी, आप इक्विवेलेंट यूनिट की जो है इलादा से भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे साथ साथ कर रहे हैं इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन। तो मटेरियल में जो हमने 7,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने चूँकि कंप्लीट करके नेक्स्ट फिनिश गुड में, वो तो कंप्लीट है मटेरियल वाइज। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो वर्क इन प्रोसेस है उसमें 5,000 रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं, और वो कंप्लीट हैं 50%। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि मटेरियल 50% है वर्क इन प्रोसेस में, तो हम इसमें 50% को तो इट मीन्स क्या है, ये टोटल जो बनते हैं यूनिट्स, ये 5,000 की 50% 2,500 प्लस 7,000, तो ये 9,500 बन जाएंगे। 9,500 यूनिट्स हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएंगे। इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। 7,000 we have completed and transferred to finished good. 5,000 were left in the work in process, which were 50% complete toward the material. So we will take half of the 5,000 to as completed unit, क्योंकि इसमें 50% तो हम completed unit वो 2,500 हो जाएंगे, तो 2,500 plus 7,000 9,500। तो जो मटेरियल ऐड हुआ है, यू कैन सी दैट 43,415 ये मटेरियल ऐड हुआ है। इसका यूनिट कॉस्ट हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, दिस डिवाइडेड बाय 9,500, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 4.57। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर लेबर। लेबर की कॉस्ट भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। उसमें 7,000 हमने इक्विवेलेंट यूनिट है, 7,000 यूनिट तो हमने भेज दिए, वो कंप्लीट थे, प्लस जो 5,000 रह गए हैं वर्क इन प्रोसेस में, वो 25% कंप्लीट हैं, 25% कंप्लीट हैं टुवर्ड FOH, टुवर्ड कन्वर्जन।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गए, तो सॉरी, ये हमारे पास टोटल आते हैं 7,500 जो है कंप्लीट है, और इसकी 25% ऑफ 5,000 है 1250, तो ये हो जाएगा 8,250, 8,250 ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट आ गए। ठीक है, 7,000 प्लस 5,000 के 25% अगर आप लेंगे तो वो 1250 आएगा। तो 1250 प्लस 7,000 8,250, तो टोटल जो कॉस्ट है हमारे पास लेबर कॉस्ट वो है 56,100 की। तो अब इसकी 56,100 की अगर हम यूनिट कॉस्ट निकालें तो वो आएगी दिस डिवाइडेड बाय 8,000, this divided by 8,250 and we'll get the unit 56,100 divided by 8,250 और हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई 6.80। सिमिलर वी कैन कैलकुलेट दी जो है वर्क इन प्रोसेस जो है ना, सॉरी FOH की कॉस्ट भी हम सिमिलर वे उसके भी यही इक्विवेलेंट यूनिट होंगे। FOH फैक्ट्री हो रहा है, उसकी भी यही इक्विवेलेंट यूनिट आ रहे हैं, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 58,575 575 and divided by this divided by 8,250, तो ये हमारे पास है 710। सो अब हम वी एड अप ऑल दीज कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट को एड अप करते हैं, सो वी विल गेट 158,090 और इस तरह यूनिट कॉस्ट जो है हमारी इधर आ जाएगी, इसको हम ये 18.47 हमारी यूनिट कॉस्ट आ रही है। सॉरी ठहरे, तो पिछली कॉस्ट भी ऐड करनी है पिछले डिपार्टमेंट की, ये अब आएगी सही। तो 174,410 टोटल कॉस्ट आ रही है। ये हम ये 19.83 कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है। तो ये कॉस्ट जो है यहाँ से लेकर कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट ये है, और टोटल कॉस्ट ये है। हम 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट अगर हम करें तो वो ये है, कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट अगर हम करते हैं तो वो ये आती है। इसको मैं यूज कर लेता हूँ, ये, और ये जो है कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट है। ये जो कॉस्ट एडेड इन 158,090 और इसके यूनिट कॉस्ट, तो एज दिस इज द सेकंड डिपार्टमेंट, तो ये जो डिपार्टमेंट ये जो आ रही है कॉस्ट पिछले डिपार्टमेंट, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो हम इसको नीचे ऐड कर लेते हैं। ये टोटल कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट 2। ठीक है, अब यहाँ पे आखिर में टोटल कॉस्ट कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब दिस और प्लस दिस, तो ये टोटल कॉस्ट आएगी दिस
प्लस दिस कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट, यानी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 प्लस कॉस्ट एडेड इन, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ गई 174,410। तो यही अगर फार्मूला हम आगे ले जाए तो ये आगे टोटल कॉस्ट हमारे पास ये 19.83 यूनिट कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है 174,400। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे कि कॉस्ट हमने ट्रांसफर कितनी की है और वर्क इन प्रोसेस में कितनी रहती है। कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट या फिनिश गुड टू फिनिश गुड, जो आगे फिनिश गुड ही फिनिश गुड्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने किए 7,000 इंटू 19.83, 19.83, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र किए हैं और यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही 19.83, तो इंटू 19.83, सो वी गेट 138,810। ये कॉस्ट जो है हमने ट्रांसफ़र की है फिनिश गुड को, ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 2 से जो फिनिश गुड को कॉस्ट ट्रांसफ़र हो रही है वो है 138,800। और नेक्स्ट स्टेप है कि हम वर्क इन प्रोसेस जो क्लोजिंग है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें जो हमारे पास सब रहेगी। वो 5,000 हमारे पास रह गए हैं, तो वर्क इन प्रोसेस क्लोज, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो कॉस्ट है ना, जो वर्क इन प्रोसेस में, उसमें कुछ प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट है प्लस कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट में ऐड हुई वो भी है। तो कॉस्ट इसमें, इसको हम जरा वो कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट आ रही है वो हम कैलकुलेट करें। कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जो इसमें आ रही है वो इस तरह कैलकुलेट होगी कि हमारे पास 5,000 यूनिट है, तो वो टू कंप्लीट ही है टूवर्ड प्रीवियस यूनिट कॉस्ट। तो प्रीवियस यूनिट कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 1.36। अगर आपको याद हो 1 पॉइंट ये ऊपर ले 1.36, तो ये हमारे पास आ जाएगी ये। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5,000 हमारे पास इन्वेंट्री में है, इनटू जो यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट वो ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 6,800 जो है। जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 6,800। अब इसमें इस डिपार्टमेंट में जो ऐड हुआ है उसमें मटेरियल ऐड हुआ है, मटेरियल की कितनी कॉस्ट है इसमें वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में। तो मटेरियल में आपको पता है कि वो 50 दे आर 50% कंप्लीटेड टुवर्ड दी मटेरियल। तो ये हमारे पास, तो वो हमारे पास जो इक्विवेलेंट यूनिट आएंगे वो आएंगे 2,500। तो हम यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालते हैं 2,500 इक्विवेलेंट यूनिट इनटू जो यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है ये है मटेरियल की, ठीक है। मटेरियल की ये कॉस्ट हमने निकाली तो ये हमारे पास आएगी 11,425। सिमिलरली हम कॉस्ट निकालेंगे उसकी लेबर की, कि लेबर की कॉस्ट कितनी है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में। तो लेबर हमारे पास आ गया सिमिलर, इसको यहाँ पे तो ये आ गया 1250, ठीक है। तो 5,000 चूँकि 25% जो लेबर है उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है उसमें 25% लेबर है, तो दैट्स वाई दे आर इनकम्प्लीट। तो
उसकी जो 25% की इक्विवेलेंट यूनिट निकले वो 1250 निकलते हैं। तो हम इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1250 इंटू ये हमने उसका रेट निकाला है लेबर का 6.80, ये रेट निकला है। तो ये हम लगा तो 8500 जो है हमारे पास आ गया लेबर का। सिमिलरली हम FOH का भी इसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, FOH का भी इसी तरह हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 1250, इसके भी 1250 बनेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। तो हम इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 1250 इंटू ये जो है यूनिट कॉस्ट जो है FOH का यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, तो ये आ गया 8875। तो अब इसको जब हम ऐड अप करेंगे, इसको ऐड अप करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड अप करेंगे इसको, तो सम ले लेंगे इसका। तो ये हमारे पास आ गया सम। तो जो हमारे पास सम आया है क्लोजिंग इन्वेंट्री का वो है 35,600। अब हम इसको ऐड करेंगे इसको और इसको, तो हमारे पास 174,410 आने चाहिए। तो हम इसको ऐड अप करते हैं। तो ये वही अमाउंट हमारे पास आ गई है। इफ यू कैन सी कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट जो है रिकंसाइल हो गई, ठीक हो गया। तो यू सी दैट हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। जिस तरह हमने यूनिट कॉस्ट निकाला है और जिस तरह हमने कैलकुलेशन की है वो सारी एक्यूरेट है। सो दिस इज़ हाउ द cost of production report is prepared for the subsequent department which receive cost from the previous department. जो first department होता है उसमें previous department exist नहीं करता, तो उसमें सारी cost जो charge है हो रही होती है वो cost added in the department होगी। लेकिन जो subsequent department होता है, first department के बाद कोई भी department हो, second हो, third हो, fourth हो, तो that department, subsequent department receive a portion of cost from the previous department. तो उसमें previous department में से भी कोई cost आ रही होती है। So if you have any question, you can ask. आपका अगर कोई question है तो आप पूछ सकते हैं। Before moving toward third exercise, हम इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज, जी फहीम साहब ने हैंड रेज किया है। जी अपन अपना माइक खोलें जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर ये जो लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड जो है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट का पूछ रहा था मैं। ये दोनों को ऐड करें तो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है, ठीक है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो जी तो इसमें आपने जो फॉर्मूला लगाया है 7000 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 25%, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 8250। जी ये ठीक है सर। इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। सही है। तो सेम चीज आपने FOH पे भी लगाई है। अगर ये ब्रेकअप में दिया जाता क्वेश्चन में कि फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर अलग अलग दिया जाता है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट नहीं दी जाती, सिर्फ ये दिया जाता, तो भी इसी तरह करते, या यानी कि इसको आपने मतलब ये बताया ना सर, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर ही आपने दोनों चीजों का आपने ले लिया सर। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं जरा अच्छा, दोबारा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्चुअली बात ये होती है ना कि ये FOH अप्लाई किया जाता है और इट इज़ अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जितनी डायरेक्ट लेबर परसेंटेज होगी वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज उस पर FOH पे चली जाती है, ठीक है। तो दैट्स वाई कि उसकी सेम परसेंटेज कन्वर्जन की ली जाती है। लेकिन सम टाइम के वो जो FOH हम अप्लाई कर रहे हैं, मे बी वो हम डायरेक्ट लेबर आवर पे ना करें या किसी और डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर डिफरेंस आ सकता है।
तो इसलिए ये आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें कन्वर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। कन्वर्जन का मतलब है लेबर और FOH, ठीक है। तो इनका सेम परसेंटेज दिया जाता है कि देवर बहुत रेयर चांस है कि वो लादा आपको बताएं कि लेबर जो है इतने परसेंट कंप्लीट है और FOH जो है इतने परसेंट कंप्लीट है। तो दैट्स वाई, क्योंकि वो जो कॉस्ट हम अप्लाई करते हैं, FOH जो अप्लाई करते हैं ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर करते हैं। तो दैट्स वाई वो परसेंटेज फिर एक जैसी हो जाती है। एनी हाउ इन रेयर चांस भी है कि वो अलग से भी दे दें, फिर आपको अलग यूनिट्स उसके इक्विवेलेंट यूनिट निकालने पड़ेंगे। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी हेलो सर। जी 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 सर ये जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है इसमें कॉस्ट फॉर्म डिपार्टमेंट 1 जी जी 5000 को मल्टीप्लाई किया 1.36 से, ये इधर कैसे आया, मतलब इसको इसका थोड़ा सा बताएं। जी जी इसका मैं देखें, ये शुरू में हमने अगर यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट आ रही थी 16,000 पिछले डिपार्टमेंट से, ये आपको दी हुई होगी ना, इट इज़ गिवन। तो पिछले डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट आ रही है वो है टोटल कॉस्ट 16,320, ठीक है। अब इसकी यूनिट कॉस्ट हमने कैसे निकाली कि पिछले डिपार्टमेंट से हमें यूनिट आ रहे हैं 12,000, ठीक है। ये 12,000 अगर देखें तो इसमें 12,000 हमें यूनिट आ रहे हैं पिछले डिपार्टमेंट से। तो अगर हम 16,320 को डिवाइड करें विद 12,000 तो हमें यूनिट कॉस्ट मिलेगी वो 1.36 की है। अब क्लियर हो गया? अच्छा, अब जी क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में 5,000 यूनिट रह गए, तो इसमें एक पोर्शन जो है वर्क इन प्रोसेस में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का भी है, ठीक है। तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पोर्शन हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि 5,000 यूनिट है तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1.36 जो हमने यूनिट कॉस्ट निकाली, वो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिए। तो ये हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट निकल आएगी विच इज़ इंक्लूडेड इन वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब क्लियर हो गया सही है। जी? जी दो पार्टिसिपेंट और ने हैंड रेज किया हुआ है जी। अपने माइक खोल लें, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल अब कोई शायद क्वेश्चन नहीं है, तो हम एक उसमें चले जाते हैं वापस अपने। अच्छा, अब हम एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें लॉस है, ठीक है, यूनिट लॉस्ट हो रहे हैं। तो अब लॉस्ट यूनिट जो है उसके कुछ ट्रीटमेंट है ठीक है। एक होती है नॉर्मल लॉस और एक होती है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस उसको कहते हैं कि वो रिकरिंग है, यानी बार बार होगी, जब भी आप प्रोसेस चलाएंगे तो वो लॉस होगा। वो इट मे बी ड्यू टू द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की वजह से भी हो सकता है कि वो नॉर्मल लॉस होगा। मसलन आप अगर हीट करते हैं और किसी रॉ मटेरियल को, तो ज़ाहिर है वो एवोपरेशन होगी, वो सिकुड़ेगा या जो भी है। तो वो प्रोसेस की वजह से वो रॉ मटेरियल की अपनी एक क्वालिटी है कि वो सिकुड़ जाता है या एवोपरेट हो जाता है, यानी वो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, तो कुछ यूनिट लॉस हो जाएंगे। तो वो जब भी आप वो प्रोसेस करेंगे उतना यूनिट लॉस होगा, अनलेस एंड अनटिल के आप अपना प्रोसेस चेंज कर लें, ठीक है, नई मशीन ले आए या जो कुछ। लेकिन वो जो लॉस है वो आपके लिए एक नॉर्मल है, ठीक है। बस जब आप बेकिंग करते हैं तो उसमें सिकुड़ जाती हैं चीज़ें, कम हो जाती हैं ड्यू टू एवापोरेशन या और भी जो भी है,
तो उसका वज़न भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह जब आप कोई पेंट है, पेंट या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो ऐसा मटेरियल इस्तेमाल जो एवापोरेट हो जाते बड़ी जल्दी, ठीक है, तो जब आप वो मिक्स करेंगे या जो जिस तरह वो आप उसमें डालेंगे तो कुछ एवापोरेशन हो जाएगी, तो कुछ यूनिट लॉस्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, वो नॉर्मल प्रोसेस में आता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, वो नॉन रिकरिंग होते हैं, वो बार बार नहीं होते। ठीक है, वो कभी कभार होंगे। मसलन आप कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपके यूनिट ज़ाया हो जाते हैं, या फिर आप एक्सीडेंटली आप ज़्यादा हीट दे देते हैं और यूनिट आपके लास्ट हो जाते हैं। मसलन आप बेकिंग कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, डबल रोटियाँ प्लांट है, तो उसमें अगर हीट ज़्यादा कर दी तो वो कुछ डबल रोटियाँ जल जाएंगी या कुछ जब जल जाएंगी। इसी तरह या बेकरी आइटम है, तो ये एबनॉर्मल लॉस है क्योंकि ये एक्सीडेंटल है। या इस तरह है कि आपने प्रोसेस में डाला हुआ है और पीछे से लाइट चली जाती है या कोई गैस चली जाती है या कोई ऐसा कुछ इंटरप्शन हो जाती है, तो वो यूनिट लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसको हम उसको वो नॉन रिकरिंग होता है, वो कभी कभार होता है। ठीक है, वो एबनॉर्मल लॉस होता है। लेकिन अब हम फिलहाल इस एक्सरसाइज में नॉर्मल स्पॉइलेज को देखेंगे। ठीक है, कि जो आपका नॉर्मल रूटीन है उसमें जो यूनिट लॉस हो रहे हैं उसकी किस तरह ट्रीटमेंट की जाए। ठीक है जी, हिरा आपने हैंड रेज किया है। सर इसमें जो 5% होगा वो यूनिट ट्रांसफर टू फिनिश गुड का होगा ना? नॉर्मल इस 5, हाँ जी 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 बिल्कुल। ठहरे, हम इसकी तरफ आते हैं। अभी पहले ये ज़रा क्लियर कर लें कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मली वो जब भी आप प्रोसेस चलाएंगे तो वो नॉर्मली होगा, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि आप अपना पूरी प्रोसेस को चेंज कर दें या मशीन को चेंज करें या एफिशिएंट कोई मशीन ले आए या कोई ऐसी कोई वो हो जाए कि वो उससे आप नॉर्मल लॉस कम से कम। लेकिन नॉर्मल लॉस है वो रिकरिंग लॉस है, ये बार बार होगा जब भी आप प्रोसेस करें। तो फिर अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, तो इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द रिमेनिंग यूनिट। मसलन अगर 10,000 आपने पुट इन प्रोसेस किया है, if the 10,000 units are put in process and 7,000 are transferred और 2,000 आपके, इसका मतलब 1,000 लॉस हो गया, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर 1,000 इफ यू कंसिडर इट इज अ नॉर्मल, तो फिर बाकी जो उसकी कॉस्ट है रिमेनिंग यूनिट है उस पर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट जो हम फिर काउंट ही नहीं करेंगे टूवर्ड इक्विवेलेंट यूनिट जो है, हम नॉर्मल लॉस जो हो गए यूनिट्स उसको काउंट नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइड हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी बाकी रिमेनिंग यूनिट पे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। और अब एबनॉर्मल जो लॉस होगा उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। एबनॉर्मल लॉस को इज टेकन टूवर्ड दी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस को उसको प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट का हिस्सा इसलिए, कॉस्ट का हिस्सा इस वजह से कि वो नॉन रिकरिंग है, तो उससे आपकी जो प्लानिंग है या जो वो है वो उसमें फ़र्क पड़ता है कंट्रोल पे। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में इट इज़ टेकन टू दी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, और उसके बाद उसको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर दिया जाता है। ठीक हो गया, तो लेट्स टेक दिस, डू दिस एग्जाम्पल नंबर 3। हम इसको करते हैं, इसको फिर हमें उधर जाना पड़ेगा, एक्सेल में चले जाते हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 3 कर लेते हैं। तो इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, now let's consider the exercise number 3. Melamed company uses process costing. All materials are added at the beginning of the process. अच्छा, इसमें अब आप एक ध्यान रखें कि मटेरियल जो है, तमाम मटेरियल जो है वो ऐड किया गया एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस।
तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें 100% मटेरियल होगा, ठीक है। All materials are added at the beginning of the process. The product is inspected when it is 80% converted and spoilage is identified only at that point. Normal spoilage is expected to be 5% of the good output. ठीक हो गया। गुड आउटपुट का मतलब ये है कि जो आपने ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि हमारे पास और गुड आउटपुट की कोई यहाँ पे वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं दी गई, तो हम गुड आउटपुट को यही समझेंगे कि जो ट्रांसफ़र हुआ हुआ है नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका 5% हम ले लेंगे। सो ड्यूरिंग मार्च 10,500 यूनिट्स वर पुट इनटू प्रोसेस, करंट कॉस्ट वर मटेरियल 50,500, लेबर इतने उतना। So the 3,000 were still in process at the end of the March, and 90% and were estimated to be 90% complete. ठीक है, all spoilage were normal. A total of 7,000 units were transferred to finished good. अब हम इसका ना निकालते हैं जो है, क्योंकि वो कहता है जितनी भी spoilage हुई that is normal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्वांटिटीज का पहले इसका मेलामेट कंपनी मेला कंपनी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, और उसके बाद है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, फॉर द ठीक हो गया। अच्छा, पहले हमारे पास आया क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम यूनिट, ये चूँकि डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट कैसे कि यहाँ पे लिखे ड्यूरिंग मार्च 10,500 यूनिट पुट इनटू प्रोसेस, इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हम करते हैं यूनिट्स पुट इन प्रोसेस, इन प्रोसेस, यूनिट पुट इन प्रोसेस है हमारे पास 10,500। अब इसमें यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है, यूनिट्स ट्रांसफर नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो है 7,000, ठीक हो गया। और जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो है वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग है वो है 3,000, यस 3,000। तो ये 90% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट। कन्वर्जन कर देते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए 3,000। अच्छा, अब डिफरेंस इसमें 5,000 का 500 का आ रहा है। 7,000 तो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और बाकी जो हमारे पास बचे हैं वो है 3,000 यूनिट्स, ठीक है, जो वर्क इन प्रोसेस में। तो अब 500 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वी पुट इनटू प्रोसेस 10,500 यूनिट वी पुट इनटू प्रोसेस, and out of 10,500, 7,000 were completed and transferred to next department, 3,000 still we have on hand. तो जो यूनिट लॉस हुए, नॉर्मल लॉस जो है वो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस यूनिट या यूनिट लॉस्ट इन द प्रोसेस, यूनिट लॉस्ट इन द प्रोसेस,
ठीक है, ये नॉर्मल लॉस है, इसको हम ब्रैकेट में नॉर्मल लॉस भी कर देते हैं, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आ गया 500। तो अगर हम इसको ऐड अप करें तो टोटल हमारा वही मैच करना चाहिए इसको। ये 10,500 हमारा अब ये मैच हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसका जो है स्टेप जो है वो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। चूंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट कोई नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट वो जीरो। इसके हम दो कॉलम क्रिएट कर ले, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। ठीक हो गया। अच्छा, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो। ठीक हो गया। अब जो कॉस्ट ऐड हुई है वो हम अकाउंट फॉर करते हैं, कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट। हो गया। जो कॉस्ट ऐड हुई है डिपार्टमेंट में, इसमें सबसे पहले है मटेरियल। अब मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेते हैं। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट है 7,000, तो हमने कंप्लीट करके, चूँकि जो है मटेरियल स्टार्ट में ऐड किए जाते हैं तो जो हमारा वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है उसमें भी 100% मटेरियल है, तो उसको हम कंप्लीट यूनिट लिखेंगे। तो 7,000 प्लस 3,000, तो ये हमारे टोटल जो बनते हैं वो 10,000 बनते हैं इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के। ठीक हो गया। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो मटेरियल की आ रही है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं 52,500 की आ रही है। तो 52,500 टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, और यूनिट कॉस्ट इसकी आएगी दिस डिवाइडेड बाय 10,000, ये 5.25 आ गई। अब लेबर के लिए हम करेंगे, लेबर के लिए हम लेबर के लिए इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। लेबर 7,000 तो हमारे कंप्लीट थे, प्लस जो 3,000 है वो कह रहे हैं कि 90% कंप्लीट है। अगर आप देखें इधर, the 3,000 units still in process at the end of March were estimated to be 90% complete। ठीक है। तो अब चूंकि मटेरियल हमने स्टार्ट में डाल दिया है तो वो तो 90% नहीं है, वो तो 100% होगा, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने मटेरियल डाल दिया है। तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग जो है उसमें 100%, जो 90% एप्लीकेबल ये टुवर्ड्स द कन्वर्जन कॉस्ट है। ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 90%, तो लेबर इज द कन्वर्जन कॉस्ट, तो इसको हम 90% कर लेते हैं, ये 90%। तो ये हमारे हो जाएगा 90% ऑफ 3,000 2,700, तो 7 प्लस 7,000 तो 9,700 हो जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक हो गया। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है लेबर की वो आ रही है 39,750, 39,770, सॉरी 770 ये आ रही है। तो अब इसको हम जो यूनिट कॉस्ट निकालेंगे वो डिवाइडेड बाय 9,700, तो ये हमारे 4.1। अच्छा, अगर आप देखें ऊपर मटेरियल में हमने कंसिडर ही नहीं किया लॉस्ट यूनिट। ठीक है। 7,000 प्लस 3,000, इसमें लॉस यूनिट हमने कंसिडर किए। तो लॉस यूनिट को जब हम कंसिडर नहीं करते तो इट इज़ ऑटोमेटिकली जो है ना, लॉस्ट यूनिट जो है उसकी कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है ऑन द रिमेनिंग यूनिट पे। ठीक है। जब आप उनको काउंट नहीं करेंगे, काउंट में नहीं लेंगे लॉस्ट यूनिट को, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगी रिमेनिंग यूनिट पे
यानी स्प्रेड हो जाएगी उस पर, उन पे अंडर आ जाएगी उसको कॉस्ट। ठीक हो गया। इसके बाद है FOH। FOH की भी सेम यूनिट आ रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, FOH इसके भी यही आ रहे हैं, और इसकी टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास वो आ रही है 31,525। और इसको अगर हम इधर ले जाएं और इसकी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 9,700, तो ये आ गई 3.25। अब इसको हम सम अप कर देते हैं। ये सम अप हो गया 123,795, ये 12.60। अब जो इसकी लास्ट स्टेप है इस का, वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक हो गया। उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट द कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि 7,000 अगर आप क्वांटिटी स्केड्यूल में देखें, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट है 7,000। तो कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ये हमारे पास आ गया जनाब। इसको हम इस तरह करेंगे, 7,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफ़र किए इनटू जो यूनिट कॉस्ट है 12.60। ठीक है, 12.60। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 7,000 इंटू 12.60, ये वाली। तो ये हमारे पास 88,200 कॉस्ट जो है हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट। अब हमारे पास नाउ वी कैलकुलेट वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, कि हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में कितनी अमाउंट आ रही है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। ठीक है, ये इसकी इसमें चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आ रही, सो व्हाट वी डू दैट वी इसमें जितनी भी कॉस्ट होगी वो इसी डिपार्टमेंट की होगी। सो मटेरियल कितना ऐड हुआ वो देख लेते हैं। मटेरियल के लिए हमारे जो चूँकि 10,000 है यूनिट, तो हम 10,000 पूरे लेंगे, क्योंकि मटेरियल्स एडेड सॉरी इसके जो 3,000 यूनिट हम पूरे लेंगे, क्योंकि मटेरियल्स एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक हो गया। तो इसके 3,000 हम पूरे यूनिट्स लेंगे। ठीक है, तो 3,000 पूरे यूनिट आ गए, तो इसका जो है इक्वल टू 3,000 मल्टीप्लाइड बाय ये यूनिट कॉस्ट है, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 15,750 जो मटेरियल की कॉस्ट है इन द वर्क इन प्रोसेस। इसी तरह हम लेबर की कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेबर, अब लेबर में जो है वो है जनाब 3,000 इंटू 25%। ठीक है, नहीं सॉरी 90%, 90% ये इसकी, तो ये बन जाते हैं जनाब 2,700। ठीक हो गया। तो अब इसकी कॉस्ट, जो लेबर की कॉस्ट हम निकालेंगे 2,700 इंटू ये जो कॉस्ट आ रही है हमारे पास लेबर, ये आ गई। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई 11,770। इसी तरह हम FOH की कॉस्ट में निकाल, उसके लिए सेम यूनिट हैं FOH के लिए भी, तो FOH ये आ गया 2,700। तो सेम वही ट्रीटमेंट करेंगे, 2,700 मल्टीप्लाइड बाय दिस यूनिट, ये हमारे पास आ गई। अब इसकी कॉस्ट जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट वो कैलकुलेट करते हैं, सम अप करते हैं इंडिविजुअल कॉस्ट को, मटेरियल
लेबर और FOH, तो ये हमारे पास आ गई ये वाली कॉस्ट। ठीक हो गया। तो अब ये कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री की 35,595, और ये कॉस्ट जो है ये कॉस्ट वी हैव ट्रांसफर्ड, ये जो 88,200। अब इसको सम अप करते हैं दोनों कॉस्ट को, तो वी गेट ये। अब हमारे ये जो अमाउंट है ये रिकंसाइल कर गई है इसके साथ 123,795, और ये जो है हमारे पास ये दोनों कॉस्ट मैच कर गई। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इस तरह बनाई जाती है, और इसमें हमने जो है जो स्पॉइलेज है, नॉर्मल स्पॉइलेज, उसकी कॉस्ट स्प्रेड कर दी है हमने। स्प्रेड किस तरह की है? रिमेनिंग यूनिट पे, जो यूनिट रह गए उस पर स्प्रेड हो गई। स्प्रेड कैसे हुई है कि हमने इसको काउंट ही नहीं किया, तो जब काउंट नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रेड हो जाएगी ऑन द रिमेनिंग यूनिट। तो नेक्स्ट उसमें हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द नॉर्मल स्पॉइलेज। जी तैयब खान, आप अपना माइक खोल लें। जी तैयब खान, आप आपने हैंड रेस किया है, तो वो आप अपना जो माइक है वो खोल लें ज़रा। जी हाँ जी, ये हैंड रेस किए हुए, लेकिन आप अपने जो है ना माइक ज़रा खोल लें। हाँ जी, कोई तैयब साहब हैं, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो उसको कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक खोल लें। और हेलो जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो क्वेश्चन। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें जो सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2 या 3 जो भी है, उसमें जब नॉर्मल लॉस होती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इस ये चूँकि दिस इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस इसमें जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आ रही, तो जब सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें जब लॉस यूनिट लॉस होते हैं, तो उसमें चूंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट आ रही थी, तो उस कॉस्ट को हमने एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी हाउ टू एडजस्ट दैट कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम कैसे एडजस्ट करें, तो वो हम देखते हैं अब नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट एग्जांपल में हम वो भी देख लेते हैं। ठीक हो गया, तो हम वापस जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये एक है हमारे पास एक एक्सरसाइज नंबर 4, नॉर्मल स्पॉइलेज है, और इसमें अब अगर आप देखें तो इसमें प्रीवियस ये डिपार्टमेंट नंबर 2 है। ठीक है, फॉर दिसंबर द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ कैरोला केमिकल्स reported following production data for the department 2, transferred in from department 1 55,000 liters। और ये चूँकि कोई या तो जूस बना या कोई ऐसे कोई लिक्विड की प्रोडक्शन हो रही है, लिक्विड प्रोडक्ट है इसका, तो ट्रांसफर इन फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 55,000 लीटर्स, ट्रांसफर आउट टू डिपार्टमेंट 3, यानी ये डिपार्टमेंट 2 है, तो फर्स्ट डिपार्टमेंट से 55,000 लीटर आए और ट्रांसफ़र आउट हुए हैं
नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो 3 है दैट इज 39,500 इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ दिसंबर जो है वो 10,500 है। तो इसमें अब हमने देखना है कि ये बनते हैं जनाब 50,000 और 5,000 इसमें लॉस नज़र आ रहा है हमें सामने 5,000 लीटर जो है वो लॉस नज़र आ रहा है और दैट इज़ कंसिडर टू बी ए जो है वो नॉर्मल लॉस है। 5,000 जो लीटर लॉस हुआ है वो दैट इज़ अ नॉर्मल लॉस। ऑल मटेरियल वर पुट इनटू प्रोसेस इन डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 में पहला जो है सारा मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में डाला गया है और डिपार्टमेंट 2 में कोई मटेरियल ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, सो डिपार्टमेंट 2 विल नॉट ऐड एनी मटेरियल कॉस्ट। सो द कॉस्ट डिपार्टमेंट कलेक्टेड दिस फिगर फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 यूनिट जो कॉस्ट है फ्रॉम ट्रांसफर इन डिपार्टमेंट 1 जो पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट कॉस्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है वो है 1.8। तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ 55,000 लीटर क्योंकि हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ रही है पिछले डिपार्टमेंट की तो हम वो ईजिली कैलकुलेट। अच्छा, जो बाकी दो कॉस्ट चूँकि मटेरियल तो ऐड नहीं हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, तो बाकी जो कॉस्ट ऐड हो रहे हैं दैट इज़ लेबर कॉस्ट है और FOH कॉस्ट है। ठीक है, लेबर कॉस्ट है 27,520 और FOH जो है वो है 15,480। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम इसको कॉपी करके उधर एक्सेल में ले जाते हैं। इस क्या नाम है, इस एक्सरसाइज को हम एक्सेल में कॉपी करके ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं इसको और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। ये हमने क्रॉप कर लिया इसको और इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि ये नज़र आ सके हमें। ठीक हो गया, ये हमें अब नज़र आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है कैरोला केमिकल। तो सबसे पहले हम टॉप पे लिख लेते हैं कैरोला। इसका ज़रा यहाँ पे इसको कॉपी करके फॉर्मेट, यहाँ पे कैरोला कंपनी, कैरोला केमिकल। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 है। डिपार्टमेंट 2 की हम बना रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 की हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ठीक हो गया। और फॉर द मंथ ऑफ ये है टाइम लिखा है दिसंबर, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर हो जाएगा, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, फॉर द मंथ दिसंबर। ठीक है, ये फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वांटिटी स्केड्यूल से स्टार्ट लेते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल, क्वांटिटी स्केड्यूल से स्टार्ट लेते हैं। तो यूनिट रिसीव्ड जो है हमारे पास फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 वो है 55,000, वो सामने नज़र आ रहे हैं। यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1।
ठीक है, क्योंकि दिस इज द सेकंड डिपार्टमेंट, तो यूनिट्स पिछले जो डिपार्टमेंट से आ रहे हैं वो है 50,000 55,000 यूनिट्स आ रहे हैं। और यूनिट्स जो अब इसका जो काउंट है वो इस तरह है कि इसमें से यूनिट ट्रांसफ़र जो किए हम डिपार्टमेंट 3 वो हैं 39,005 यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3। डिपार्टमेंट 3 को जो हमने यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं वो हैं 39,500, ठीक है, 39,500 हमने ट्रांसफ़र किए हैं। और जो यूनिट हमारे पास इन हैंड है, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, वो है जनाब हमारे पास 10,500। अब इसमें अगर हम इसको दोनों को ऐड करें 39,500 और 10,005 तो इट कम्स टू बी 50,000 की फिगर हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब है 5,000 इज शॉर्ट, तो 5,000 जो है वो यूनिट लॉस्ट हो गई है, ठीक है, यूनिट। और ये दिस इज नॉर्मल स्पॉइलेज, यूनिट्स लॉस्ट, इसको हम लिख लेते हैं नॉर्मल स्पॉइलेज, ये नॉर्मल स्पॉइलेज है। और इसको जब हम ना 5,000 ये हमारे लास्ट हो गए, तो नाउ इट्स कम आउट टू बी, अगर हम इसको ऐड करें, इसका ऐड करें तो ये हमारे बिल्कुल 55,000 बन जाते हैं। सो इट्स कम आउट टू बी, तो ये हमारी फिगर जो है रिकनसाइल होगी फिजिकल क्वांटिटी की। We received 55,000 from Department 1 and we transferred 39,000 to next department, and we have on hand at the end of the month 10,500 unit and 5,000 units were lost. So this figure is reconciled. Total जो है इसका 55,000 और यही इतने यूनिट हमें डिपार्टमेंट 1 से आए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट करते हैं। कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज्ड टू द डिपार्टमेंट 2, ठीक है। ये डिपार्टमेंट 2 में कॉस्ट की एनालिसिस क्या है, इसमें एक पोर्शन जो है कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट से है। पहले हम इसमें 2 कॉलम बना लेते हैं, टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट, और दूसरा है यूनिट कॉस्ट का, ठीक हो गया। दो कॉलम हमारे बन गए। अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। पहले है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, ठीक है, कॉस्ट हमारे। अच्छा, कॉस्ट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 जो है, अगर आप देखें तो उसने टोटल कॉस्ट नहीं दी हुई है, हमें यूनिट कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। वो यूनिट कॉस्ट है 1.80, ये हमें यूनिट कॉस्ट मिली हुई है, ठीक हो गया। इसको इसमें ये 1.80 की हमें कॉस्ट वहाँ से रिसीव हुई है, कहाँ से, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट। तो अब अब हमारे टोटल कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम किस तरह मालूम करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट बाय 55,000, ठीक है। तो ये दिस इज यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 55,000, दिस वन, ये, तो ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 99,000 की, ठीक हो गया। अब कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट 2। अब डिपार्टमेंट 2 में जो कॉस्ट ऐड हुई है वो कितनी है, सबसे पहले मटेरियल तो है ही नहीं, सो ये हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि मटेरियल डिपार्टमेंट 1 में ही ऐड हुआ है और वहीं ऐड हुआ है, और डिपार्टमेंट 2 में कोई ऐड नहीं हुआ। तो जो रिमेनिंग 2 कॉस्ट, जो कॉस्ट एलिमेंट है, एक लेबर और FOH, ठीक है। तो हम लेबर और FOH को देख लेते हैं। लेबर जो है, पहले लेबर को देखते हैं। लेबर का अब इक्विवेलेंट यूनिट हमने निकालना है,
तो 39,000 इट इज़ नो डाउट अबाउट कि 39,000 तो कंप्लीट थे लेबर वाइज, 39,500 प्लस जो अब हमारे पास इन प्रोसेस हैं 10,500 के, वो कंप्लीट हैं जनाब 1/3। अगर आप देखें तो इसमें लिखा है इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ दिसंबर 1/3 कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। 10,500 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं कि 1/3 कंप्लीटेड है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे तकरीबन 3,500 शायद आता है, 3,500 प्लस 39,000 43,000 बनते हैं, ठीक है। इसको 43,000 मेरा ख्याल बनते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 39,500 प्लस 10,500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा, हाँ 43,000 ही आते हैं, 43,000 इक्विवेलेंट यूनिट। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट की फिगर आ रही है लेबर कॉस्ट की 27,520 की आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। और इसको अगर डिवाइड करें 40 इफ़ वी डिवाइड इट बाय 43,000 विल गेट द यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ गई 0.64। सिमिलरली हमारे जो FOH है उसकी भी यही इक्विवेलेंट कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट निकलेंगे FOH की भी, ठीक है, FOH उसकी भी यही यूनिट निकलेंगे। और कॉस्ट कितनी आ रही है उसकी 15,480, ठीक हो गया। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बाय 43,000 विद 43,000 अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 0.36, ठीक हो गया। तो ये अब हम इसको एडअप करते हैं टोटल कॉस्ट को, ये कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट, ये पहले इसको ऐड करते हैं, ये जो है ये कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है जनाब, ये कॉस्ट हमने ऐड की है 43,000 की, और यही हम इधर लेंगे तो ये हमारे पास 1। अच्छा, ये जो कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट होगी इसको हम कहेंगे कॉस्ट एडेड इन द डिपार्टमेंट, कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट 2, ठीक हो गया। ये कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट 2 होगी। अब टोटल कॉस्ट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, टोटल कॉस्ट जो ऐड हुई है, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो ऐड हुई है वो है दिस वन, दिस वन प्लस 43,000, तो ये टोटल कॉस्ट जो है इस डिपार्टमेंट को चार्ज हुए वो 142,000 है। और इस तरह अगर हम इसको ऐड करेंगे इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, तो ये हमारे पास आ रही है टोटल यूनिट कॉस्ट, बट इट इज़ बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस्ट यूनिट, ठीक है। हमने ये लॉस यूनिट जो है इसमें तो कर लिया है, इसमें तो एडजस्टमेंट कर लिया है लॉस यूनिट का, ठीक है, हमने गिने ही नहीं है लॉस यूनिट। अगर आप देखें लेबर और उसमें अगर आप देखें लेबर में और FOH में हमने लॉस यूनिट काउंट ही नहीं किए इसमें। 39,500 नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हुए, 10,500 जो है हम अभी वर्क इन प्रोसेस में है, तो लॉस यूनिट 5,000 वो हमने काउंट ही नहीं किए, ठीक है। टोटल इक्विपमेंट हमने यहाँ पे हमने जो है अगर आपको याद हो ये हमने पूरे 55,000 यूनिट ले लिए हैं, ठीक है, जबकि इसमें से 5,000 लॉस्ट हो गए, ठीक है। अगर हम यूनिट कॉस्ट निकालें, नई यूनिट कॉस्ट निकालें आफ्टर जो है क्या नाम है आफ्टर स्पॉइलेज, ठीक है,
तो अगर हम वो स्पॉइलेज को निकाल लें तो नई यूनिट कॉस्ट हमारी ये है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 50,000। तो हमारी जो कॉस्ट नई बनती है वो है दिस वन। ठीक हो गया सर वो 5,000 क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? वो हम वो तो लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब उसको एडजस्टमेंट अच्छा तो देनी है। इसको हम कहते हैं स्प्रेड ओवर रिमेनिंग यूनिट। ठीक है, इस कॉस्ट को हम रिमेनिंग यूनिट पे स्प्रेड कर लेते हैं इस कॉस्ट को, तो इसलिए हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। अब देखिए कॉस्ट हमारी 1.98 नहीं आई है। पुरानी जो हमें ट्रांसफ़र हुई थी ना उस वक्त हमारे लॉस नहीं हुआ था। 55,000 यूनिट हमारे आए थे और पर यूनिट कॉस्ट थी 1.80। लेकिन इस डिपार्टमेंट में 5,000 यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं। तो अब जो लास्ट हो गए हैं तो उसकी जो लास्ट हुए हैं वो जब आप निकालेंगे तो बाकी आपके पास 50,000 रह गए। इसका मतलब है कि 55,000 की कॉस्ट जो है अब वो स्प्रेड होके 50,000 पे आ गई, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इस बात को समझ गए आप? नहीं सर, ये प्लीज कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए। वो इस तरह है कि अब ये मैं आपको उस तरह से समझाता हूँ कि आपके पास 10 आइटम्स हैं और आपने 100 रुपीज़ की ख़रीदे हैं। ठीक है, 10 आइटम, यानी 1 आइटम का जो कॉस्ट थी वो 10 रुपीज़ थी। ठीक है, 10 आइटम्स में 2 आइटम्स जो हैं वो लॉस हो गए या टूट गए हैं या ख़राब हो गए हैं। अब आपके पास 8 आइटम रह गए। ठीक है, पहले उसकी जो कॉस्ट थी वो 10 रुपीज़ पर आइटम थी, पर यूनिट थी। अब आपके पास यूनिट 8 रह गए। अब आप निकालें पर यूनिट 100 डिवाइडेड बाय 8, तो आपके 10 रुपीज़ से अब ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो 2 यूनिट्स जो टूट गए हैं, जो ख़राब हो गए हैं, उसकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी रिमेनिंग 8 पे। अब आप मेरी बात समझ गए? अब आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, क्योंकि 2 यूनिट जो आपके टूट गए हैं या ख़राब हो गए हैं, जो भी हैं आपने ख़रीदे थे, तो अब आपकी कॉस्ट तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते ना, कॉस्ट तो आपको हो गई ना, वो एक कॉस्ट तो पड़ गई आपको। ठीक है, कॉस्ट तो आपको होगी, आप कॉस्ट को तो कहीं नहीं ले जा सकते आप। अगर यूनिट लॉस हो गए हैं तो आप कॉस्ट को कहाँ लेके जाएंगे? ठीक, कॉस्ट तो आपको पड़ गई है। अब वो वाली कॉस्ट जो है अब वो रिमेनिंग यूनिट पे डिवाइड होगी। मतलब आपके पास 10 यूनिट्स थे ना और 100 रुपीज़ की कॉस्ट आई थी आपको, तो 10 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट थी 10, उसमें से 2 यूनिट एक्सीडेंटली टूट गए या ख़राब हो गए हैं। अब आपके पास रह गए 8 यूनिट। अब 100 डिवाइडेड बाय 8 करें तो अब 10 नहीं आएगा, 10 से बढ़ जाएंगे ये कॉस्ट आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो रिमेनिंग 8 है ना वो। इसी तरह हम इसी तरह करते हैं कि ये जो कॉस्ट थी यूनिट कॉस्ट, ये 55,000 की यूनिट्स की यूनिट कॉस्ट थी। ठीक है, अब 5,000 लॉस्ट हो गए, तो हमने क्या किया कि 99,000 हमारे पास कॉस्ट आ रही थी टोटल। तो अब हम उसको बजाय 55,000 के डिवाइड करने के हम 50,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारी यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है। अब आप देखें यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ी हुई है, अगर आपको नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा इलाज कर लेता हूँ, ये अब आपको नज़र आ रही है। ठीक है, 1.98, पहले इसकी यूनिट कॉस्ट थी 1.80, अब इसकी कॉस्ट होगी 1. अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस कितना आ रहा है, दिस वन और 0.18 सर। वेरी गुड, 0.18 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस जो है ना हम एडजस्ट करेंगे इस यूनिट कॉस्ट में, जो नई यूनिट कॉस्ट हमारे पास आई है ना, इसमें हम लॉस यूनिट का एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट हम यहाँ कर लेंगे, क्योंकि जो कॉस्ट ऐड हो रही है ना इस डिपार्टमेंट, उसमें तो हमने एडजस्ट कर ली, लेकिन जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट में उसने हमने एडजस्ट नहीं की। तो कॉस्ट एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट। तो ये हम कॉस्ट तो हमें इसमें इंक्लूडेड है वो लॉस। ठीक है, कॉस्ट को हम कुछ नहीं कर सकते। अब यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.18 हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 0. ये वाला उठा के हमने यहाँ पे ले आ जाए। ठीक है,
या सिंपली अगर आपको मज़ीद समझाना हो तो ये चूँकि फ़र्क आ रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं, ये इधर इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब हमारी जो एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट है, और एडजस्टेड कॉस्ट जो है, एडजस्टेड कॉस्ट जो होगी वो हमारी कुछ इस तरह होगी, ये एज इट इज़ होगी, ठीक है, ये एज इट इज़ इधर आ जाएगी, और ये जो यूनिट कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी हमारी, ये। अब हमारी जो नई एडजस्टेड कॉस्ट है वो है 2.98। अब यहाँ तक समझ आ गई है? अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ। आ गई सर, आ गई। आ गई है ना? क्योंकि हमने जो इस डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट ऐड हो रही थी उसमें तो हमने लॉस यूनिट को एडजस्ट कर दिया, लेकिन ये जो ऊपर वाला था ना, इसको एडजस्ट नहीं की थी हमने, इसको भी एडजस्टमेंट की जरूरत, क्योंकि जो यूनिट लास्ट हुए हैं उसी में से हुए हैं ना, जो कॉस्ट पीछे से यूनिट आए, तो उसको भी तो हमने एडजस्ट करना है, तो उसको हमने एडजस्ट करके उसमें फ़र्क, अब ये पर यूनिट का फ़र्क 0.18, तो वो उसमें हमने ऐड कर दिया। तो अब ये जनाब आपका नया जो एडजस्टेड कॉस्ट है वो ये आ रही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोस, ठीक हो गया। तो अब हम इसको करते हैं, इसमें हो गया कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3, ठीक है। डिपार्टमेंट 3 को कॉस्ट ट्रांसफ़र हुई है, कितनी हुई है अब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। वो हुई है हमने 39,500 जो है, 39,500 को मल्टीप्लाई करें 2.9, जो नई एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट हमारे पास आई है 2.98 है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कॉस्ट आ गई 117,000, ये हमारी ये आ रही है कॉस्ट जो हमने ट्रांसफ़र की है नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसफ़र हमने, और हाउ डिड वी फाइंड आउट, वी मल्टीप्लाई 39,500 विद द न्यू यूनिट कॉस्ट, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। ये जो 39,500 जो ट्रांसफ़र किए थे हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, उसको न्यू जो यूनिट एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट है वो हमारी ये है, ठीक है। इसके साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 117,710। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आता है कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, ठीक है, या एंडिंग या क्लोजिंग जो भी है, उसकी हमने कॉस्ट डिटरमिन करनी है। उसकी कॉस्ट किस तरह डिटरमिन करनी है वो हम अभी निकाल लेते हैं। वो है उसमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, वो कितनी है जनाब, वो अब चूँकि रह गए हैं हमारे पास कितने यूनिट्स, 10,500 यूनिट्स रह गए, ठीक है। तो उसमें वो पूरे ही हैं 10,500 यूनिट है, इनटू जो एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट जो नई आ रही है वो है 1.98, ठीक है। तो 1.98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 10,500 इंटू दिस एडजस्टेड टाइम, ठीक हो गया। ये हमारे पास 20,790 जो है हमारे पास ये जो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब कॉस्ट जो इसमें ऐड हुई है वो सिर्फ दो कॉस्ट एलिमेंट ऐड हुए हैं, वो लेबर हुई है, लेबर में हमारे पास जनाब ये हैं इक्विवेलेंट यूनिट आ रहे हैं हमारे पास 3,500, ठीक है। तो चूँकि दे आर 1/3 कंप्लीट टुवर्ड द कॉस्ट लेबर, तो ये हमारे पास, तो इसको हम what we do 3,500 मल्टीप्लाइड बाय दिस, जो हमारे पास लेबर का जो आया है कॉस्ट पर ये आया, ये हो गया। उसके बाद
हम FOH की भी वही जो इक्विवेलेंट यूनिट है वही, चूँकि FOH ठीक हो गया, तो सिमिलरली सिमिलर ट्रीटमेंट होगा इसके 3500 इंटू ये लेबर का रेट है हमारे पास, FOH सॉरी FOH का ये रेट है हमारे पास, तो ये आ गया। और इसको अब हम ऐड करते हैं तो वी गेट, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं ये 24,290 ठीक है। अब इसको जब हम ऐड करेंगे इसके साथ कोई कॉस्ट वह तो नहीं दी, वी गेट 142,000 ठीक है। तो एग्जैक्टली मैचिंग होगी हमारी उसके साथ। तो अब देखें 142,000 ये आ गया हमारे पास, और प्रीवियस सेक्शन में एडजस्टेड कॉस्ट जो थी ये टोटल कॉस्ट ये थी, तो ये दोनों मैच हो गए। तो दिस इज़ हाउ इस व्हाट वी लर्न इन दिस एक्सरसाइज के जो द लास्ट यूनिट की हाउ द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज एडजस्टेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के इफ़ द नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट एडजस्टमेंट किस तरह होती है जब अब कॉस्ट प्रीवियस डिपार्टमेंट, और पिछले एग्जांपल में हमने देखा था उसमें चूंकि दैट वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट, तो वहाँ पिछले डिपार्टमेंट से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ से कॉस्ट आने का कोई सवाल नहीं था। तो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज़ीरो थी, लेकिन इस डिपार्टमेंट में हमने करंट डिपार्टमेंट में हमने एडजस्ट कर ली थी लॉस्ट यूनिट की, वो स्प्रेड हो गई। अब अगर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी कॉस्ट आ रही होती है, हाउ कैन वी एडजस्ट दैट, कैन मेक एडजस्टमेंट फॉर द लास्ट यूनिट, वो हमने इसमें देख लिए कि उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। नाउ टाइम इज़ अप, टाइम हो गया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अब हैंड, यू कैन रेज द हैंड, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है। एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं, तो चलें हम अपने जो है सेशन एंड करते हैं। अच्छा, आपके पास अगर कोई और टाइम स्लॉट हो तो मुझे बताइएगा, फिर हम ड्यूरिंग द वीक हम वो ले सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि मैं उस वक्त फारिग हूँ, लेकिन आप मुझे वो अजीज़ और रहमान साहब फिर बता दें। तो शफीक साहब अगर हैं तो सुन रहे हैं तो फिर ये सेशन एंड करते हैं। सादिया आपके साथ नहीं है। ठीक है सर, मैं इनसे पूछ के फिर आपको अपडेट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, चले फिर वो शफीक साहब को कह दें कि इसको एंड कर दें सेशन को, 2 सर आवर्स मैं हो गए। नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम शुजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र, मैं आपका लेक्चर सुन रही थी, काफी जी। देर से मैं बैठी। शफीक भाई चूंकि ब्रेक में गए हुए हैं, सो अच्छा जी। इंशाल्लाह वो शफीक भाई आए, आप स्लॉट बता दीजिए अजीज को, तो डेफिनेटली हम लोग उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को भी अजीज पूछ लो कि किसी को उस टाइम स्लॉट में कोई इशू ना आ रहा हो। ठीक है मैम, मैं डिस्कस करके ना इंशाल्लाह सर को बता दूंगा आज। चलिए ठीक है ठीक है सर। चलें। सर तो मैं क्या एंड कर दूं क्लास को? जी एंड कर दें जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक मैडम, यू। ओके मैडम, थैंक यू।